Hi dear students, good morning to all our institutions, Srinivas Chemistry. So my dear students, today we will discuss one of the important chapter of 11th standard students. It is very important chapter and this chapter is very closely related to all chapters of other chemistry chapters. These questions are coming from this chapter in your all entrance examination, entrance test like your NEET and engineering classes. So my dear students, will not delay to start this topic now. The name of the chapter is your chemical bonding. So note this chapter, chemical bonding. Today's topic is your chemical bonding. It is one of the important and interesting chapter. Chemical bonding. Chemical bonding. So what do you mean by bonding? Before that I will say the bonding word starts from bond. Bond, what is the meaning of bond? Bond is nothing. It is the force. Bond is the force which hold the atoms. Which hold the bond is the force. Bond is nothing. Bond is the force. It is the force. Force which hold the atoms in a molecule. Hold the atoms in a molecule. That is called your bond. Clear? So my dear students, what is bond? So first, bond is nothing. In chemistry language if you say bond, bond is the force which hold the atoms in a molecule. For example, I am giving you example, water, H2O. In water, the hydrogen and oxygen is stands by a bond, and here hydrogen and oxygen is stands by a bond. So bond is nothing, it is the force which hold the atoms. Suppose एक हाइड्रोजन आटम इधर है और एक ऑक्सीजन आटम इधर है और एक हाइड्रोजन आटम इधर है, तो अभी तीनों को मिलाकर रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होता है. वो फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं. वो फोर्स को हम क्या कहते हैं? जिस फोर्स के साथ ये आटम आपस में जुड़ के रहते हैं, जिस फोर्स के साथ आटम आपस में कंबाइन होकर रहते हैं, इस फोर्स को हम बॉन्ड कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड इज नथिंग. बॉन्ड इज ए फोर्स. यू कैन राइट सिंपली, बॉन्ड इज ए फोर्स which hold the atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर हर आटम को बाइंड करके रखने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होता है उसको हम बॉन्ड कहते हैं. तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड. एंड द लिंकेज इज कॉल्ड, एंड दिस लिंकेज इज कॉल्ड बॉन्डिंग, एंड दिस लिंकेज कॉल्ड बॉन्डिंग. क्लियर? So bond, chemical bonding is nothing. Chemical bond is a force which hold the atoms in a molecule. एक molecule, suppose sodium hydrochloric acid HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आई एम राइटिंग. H हाइड्रोजन एक आटम है और क्लोरीन एक आटम है. अभी दोनों को मिलाकर रखने से एक मॉलिक्यूल बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इस मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक फोर्स की जरूरत होता है जिसके कारण हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अट्रैक्शन होकर रहते हैं. समझ में? तो बॉन्ड इज नथिंग. बॉन्ड इज द फोर्स व्हिच होल्ड द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. सिंपल. देन विल क्लासिफाई देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड. Then types of bond. Before that, there is a question in our mind: what type of atoms will take part in bonding, and what types of atom will not take part in bonding? Can all atoms will take part in bonding? जितना सारा आटम है क्या सब आटम बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे? नहीं, क्योंकि नोबल गैस देखो, नोबल गैस, इनर्ट गैस जो होते हैं, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग बिकॉज देयर आउटर सेल इज कंप्लीटली ऑक्टेट. So those elements which outer cell contain less than 8 electrons, they are trying to be stable. They are trying to be stable. Why there will be bond? Why atom interested to take part in bonding? There is a question. Why atom will interested to take part in bonding? Why bonding will be there? क्यों bond बनाए? What is the reason between bonding? The first thing is atom interested to take part in bonding to be stable. And during the bonding the atom lost their energy and became stable. Clear? So there is a question. So atom to bond to be stable होने के लिए क्या बॉन्ड बनाना जरूरी है? टू बी स्टेबल और कंप्लीट ऑक्टेट. This is the important condition.
तो एटम स्टेबल होने के लिए और कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए वो बॉन्डिंग बनाने के लिए कोशिश करेंगे. सो दोज एलिमेंट्स व्हिच आउटर हीलियम का बात क्या करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन. ओके, बेसिकली दीज एटम देर आर नोबल गैसेस, देर आउटर सेल ऑलरेडी कंप्लीटेड, देर आउटर सेल ऑलरेडी फुलफिल्ड, देर आउटर सेल ऑलरेडी कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स. So that means they have no tendency, they are not interested to take part in bonding to the other atoms. Those elements which outer cell is less than 8 electron, जिस एलिमेंट और जिस एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, which is not in the octet state, these elements can take part in bonding. तो बॉन्डिंग बनाने के लिए हर एटम कोशिश नहीं करेंगे बॉन्डिंग बनाने के लिए. जिस एटम के आउटर सेल कंप्लीट है ऑक्टेट और कंप्लीट ऑक्टेट ऑलरेडी हो चुके हैं, वो एटम बॉन्डिंग बनाने के लिए इंटरेस्ट नहीं होंगे. तो जो एलिमेंट्स व्हिच आउटर सेल कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. तो पहले ये आंसर हमको मिल गया, बॉन्डिंग बनाने के लिए कौन एटम इंटरेस्टेड है, कौन एटम इंटरेस्ट नहीं है. क्लियर. देन व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है. सपोज 2 एटम है, एक एटम, चलो एक एटम है और बी एक एटम है, दोनों के अंदर भी बॉन्डिंग बनाने वाला है. अभी दोनों एटम, एक का एक न्यूक्लियस होता है, इसका एक न्यूक्लियस है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जब 2 एटम आते हैं, इधर एक एटम है, बी एक एटम है, दोनों एटम जब क्लोज होंगे, मिलने के लिए कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या फोर्स हो सकते हैं. तो पहले तो इसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अंदर क्या होगा, रिपल्सन होगा. क्या होगा, so there is a high repulsion occurs between the nucleus and nucleus. Similarly, in electron and electron will repel each other. So there is 2 repulsion force. जब 2 एटम आपस में मिलेंगे एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जब 2 एटम आपस में मिलेंगे एक मॉलिक्यूल बनेगा, तब बॉन्डिंग बनेगा. तो बॉन्डिंग अकेला एक एटम नहीं बनाता है, दूसरे एटम के साथ मिलकर बनाना है. दोनों एटम को क्या करना है, बाइंड करके रखने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होता है उसको बॉन्ड कहते हैं. तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम कम से कम की जरूरत है, कम से कम 2 एटम की जरूरत होता है, कम से कम. ओके, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं. तो जो एटम जब आपस में क्लोज हो गए तो क्या हो सकता है, तो एक एटम के न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सन फोर्स हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन. इसमें भी फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है. उसी तरह इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन का इसका न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन भी हो सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्शन भी हो सकता है. अभी 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इट इज हैव सीन दैट द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यूरिंग द कंबाइनिंग. जब 2 एटम आपस में कंबाइन होगा तो देयर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन. सो दैट्स ए फोर्स, एटम एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं. क्लियर. सो व्हेन 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, बट देयर इज ए फोर्स व्हिच इज हेल्प टू बाइंड दिस एटम्स, दिस इज योर कॉल्ड बॉन्ड. तो जब 2 एटम प्रैक्टिकली हम देखा जाए 2 एटम आपस में आते हैं तो ऐसे होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज़्यादा रहता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से. और हमेशा याद रखो, बॉन्डिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. व्हिच प्रोसेस, बॉन्डिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यू नो, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड और हीट इज रिलीज्ड. सो जब बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, जब बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. व्हिच प्रोसेस, सो जितना सारा एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा उतना ही बॉन्ड बेहतरीन बनेगा. याद रखो, मोर इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, और मोर इज द स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. क्लियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. याद रखो, स्ट्रॉन्गर, मोर इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन. क्लियर. सो जितना है 2 एटम जब आपस में, सपोज एक एटम और एक एटम, दोनों एटम ए और बी एटम आपस में मिलेंगे और ए बी मॉलिक्यूल बना देंगे. एक एटम ए और एक एटम बी है, दोनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, ए बी बन जाएगा. तो ए बी जब बनेगा तो उसके अंदर एनर्जी रिलीज होगा. हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए जब 2 एटम आपस में मिलेंगे, देखो एक एटम है और एक एटम है, जब आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इस वक्त एनर्जी रिलीज होगा. जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा वो मॉलिक्यूल उतना बेहतरीन बन सकता है. समझ में आ रहा है. तो ऐसे से हम बॉन्ड बना सकते हैं. तो बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 एटम की जरूरत होता है. तो बॉन्ड कुछ नहीं है, 2 एटम को बांध के रखने के लिए, 2 एटम की बंधन जैसे कहते हैं, बॉन्ड का मतलब बंधन भी कह सकते हो. ओके, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द फोर्स व्हिच एक एटम है और दूसरा और एक एटम, दोनों एटम को मिलकर रखने के लिए जिस फोर्स के साथ वो दोनों मिलकर रहते हैं उस फोर्स को कहते हैं बॉन्ड. तो ऐसे बॉन्डिंग में हमें हर एटम हिस्सा नहीं ले सकते. बॉन्ड बनाने के लिए जिस एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जिस एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, और जब बॉन्डिंग बॉन्ड बनेगा उस वक्त हमेशा एनर्जी रिलीज होगा। तो इसे हम बॉन्डिंग का डेफिनेशन कह सकते हैं, और बॉन्डिंग के लिए थोड़ा आइडिया हमको मिल गया। अभी चलो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बॉन्डिंग कितना तरह का होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक बॉन्ड को टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड और टाइप्स ऑफ बॉन्ड को बेसिकली हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है आपका वीक बॉन्ड। तो बॉन्ड को हम दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अनदर इज वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे कहेंगे, जिस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी करीबन बॉन्ड बाय लुकिंग द बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी। देखो बेटा, सपोज एक मॉलिक्यूल है एवी, तो ए एक एटम और बी एक एटम दोनों क्या है, एक फोर्स के साथ वो दोनों मिलके हैं। अभी इसको ब्रेक करने के लिए मुझे जितना एनर्जी जरूरत होगा उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कुछ नहीं होता है, बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी नथिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत होता है उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो प्रैक्टिकली इसका वैल्यू देखकर हम बॉन्ड को दो तरह में डिवाइड करते हैं। जिस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, जिस मॉलिक्यूल में एटम को अलग अलग करने के लिए बॉन्ड एनर्जी यदि करीबन 200 बॉन्ड एनर्जी करीबन 200 किलो जूल पर मोल की जरूरत होगा, उस बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के दौरान ले सकते हैं। द बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज द इंटर एटॉमिक, और द बॉन्ड इफ द बॉन्ड एनर्जी इज नियरली इक्वल टू 200 किलो जूल पर मोल, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। And in weak bond case, this the weak bond, their bond energy lies in between 2 to 42 kilojoule per mole. जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी 2 to 42 किलोजूल पर मोल के अंदर रहता है, उस मॉलिक्यूल को हम वीक बॉन्ड कह सकते हैं। नोट कर लीजिए, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एनर्जी करीबन 200 किलोजूल पर मोल होता है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जिस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी 2 to 42 किलोजूल पर मोल के अंदर रहता है उसको कहते हैं क्या, वीक बॉन्ड। अभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एग्जांपल लिया जाए तो स्ट्रॉन्ग इस तरह बॉन्ड कौन कौन मॉलिक्यूल बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एग्जांपल हम ले तो नंबर 1 होता है आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम और भी नाम में कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर 2, ये नंबर 1 वाला। नंबर 2 हम एक एक के बारे में पढ़ाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड और एक एग्जांपल दे सकते हो आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर, जिसका कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा और एक बॉन्ड दे सकते हो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस चैप्टर में हर एक बॉन्ड के बारे में पढ़ाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कह सकते हैं, बताएंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब कुछ एग्जांपल है। और एक बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हो सकता है मेटालिक बॉन्ड, so these are some example for strong bonds. You can note this one, strong bond. तो strong bond किसे कहते हैं, जिसका बॉन्ड एनर्जी करीबन 200 किलोजूल पर मोल तक आएगा। उस बॉन्ड को, जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी जरूरत होगा, इतना वैल्यू का एनर्जी जरूरत होगा, 200 किलोजूल पर मोल बॉन्ड एनर्जी जरूरत है, उस बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के दौरान ले सकते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैटेगरी में एग्जाम्पल है। और वीक बॉन्ड, जिसका बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होता है, उसका मतलब 2 से 2 to 42 किलोजूल पर मोल के अंदर रहता है। और उसका बॉन्ड देखा जाए तो ये भी दो तरह का बॉन्ड आपको दिखने को मिलेगा। कुछ बुक में इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, इसको फिजिकल बॉन्ड भी कह सकते हैं। कुछ बुक में इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, इसको फिजिकल बॉन्ड होता है, क्योंकि आपस फिजिकल ऊपर से वो उसके बारे में बताएंगे डिटेल्स जब वीक बॉन्ड। तो याद रखो, वीक बॉन्ड को पहचानने के लिए बॉन्ड एनर्जी कम होना चाहिए। तो वीक बॉन्ड का 2 एग्जाम्पल हम डाल सकते हैं। अभी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं नीचे करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयनिक बॉन्ड नंबर 1, कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। और नंबर 3 में हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और नंबर 4 मेटालिक बॉन्ड। तो ये हो गया आपका सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के नाम। अभी चलो वीक बॉन्ड का बात करें। वीक बॉन्ड 2 तरह का बॉन्ड आपको दिखने को मिलेगा, लिख सकते हो। वीक बॉन्ड में हम 2 एग्जाम्पल डाल सकते हैं। एक है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक है भांडरवाल बॉन्ड, और एक होगा भांडरवाल्स बॉन्ड। बहुत वीक बॉन्ड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। भांडरवाल्स बॉन्ड, क्लियर।
भान डुराल्स हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें से थोड़ा ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो इसका बॉन्ड एनर्जी रहता है 8 to 42 किलो जूल पर मोल के अंदर रहता है, और जो भान डुराल्स बॉन्ड होता है उसका बहुत कम होता है, 8 से भी कम होता है, कम से कम 2 to 8 किलो जूल पर मोल के अंदर रहता है, 2 to 8 किलो जूल पर मोल के अंदर रहता है। समझ में आ गया? अभी आप नोट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं उनका बॉन्ड ऐसे होता है जिसका बॉन्ड एनर्जी करीबन 200 किलो जूल पर मोल होता है, और वीक बॉन्ड उसका बॉन्ड एनर्जी 2 to 42 किलो जूल पर मोल होता है। दो तरह का वीक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ाएंगे, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड जिसका बॉन्ड एनर्जी 8 to 42 किलो जूल का, तो वीक के अंदर ए वाला स्ट्रॉन्ग है, वीक के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया? अब ये भान डुराल्स बॉन्ड इसका भी कुछ कैटेगरी हम पढ़ाएंगे, डाइपोल लंडन फोर्स कहते हैं, कुछ अलग अलग फोर्स भी होता है उसको कहते हैं, बारे में पढ़ाएंगे डिटेल्स धीरे धीरे। गैसेस स्टेट में उसको पढ़ाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ अलग है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर? नाउ विल स्टार्ट बाय वन। नाउ विल फर्स्ट स्टार्ट अबाउट आयनिक बॉन्ड। अब नोट कर सकते हो आयनिक बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ाएंगे। क्लियर? मिटा दें? ओके। सो लेट्स सी व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। पहले आयनिक बॉन्ड किसको कहते हैं? आयनिक बॉन्ड, आयन का नाम से आया है आयनिक बॉन्ड, ये बहुत आसान है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयन का मतलब दो आयन होता है, एक होता है कैटायन और एक आनायन होता है, एक कैटायन और एक आनायन, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। सो एक आटम है कैटायन और एक नेगेटिव आयन को आनायन कहते हैं। तो कैटायन और आनायन दो आयन को जोड़ के रखने के लिए, दो आयन को जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्शन होकर रहते हैं उस, देखो आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्शन होकर रहते हैं उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा? तो दोनों कैटायन और आनायन दोनों को बांध के रखने के लिए, दोनों को क्या करना है, अट्रैक्शन करके रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत है, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड हमने थोड़े प्रीवियस बिफोर सम टाइम ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज ए फोर्स, बॉन्ड इज नथिंग, बॉन्ड इज ए फोर्स। सो यहाँ पर क्या होता है, दो अलग अलग आयन को बांध के रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होता है, उस फोर्स को कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the electrostatic force of attraction which hold or which bind the opposite ions, opposite ions के मतलब cations and anions, opposite ions, cations and anions in a molecule called आयोनिक बॉन्ड। समझ में आ गया? तो एक कैटायन और दूसरे एक आनायन, एक Na+ और एक Cl-। समझ में आ गया? एक है पॉजिटिव आयन और एक है नेगेटिव आयन। अभी इस दोनों को साथ, दोनों को मिलाकर रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होता है। कैटायन और आनायन दोनों को क्या करना है, उसको बाइंड करके रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होता है, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या समझ में? दिस फोर्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड एंड दिस लिंकेज इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। जो मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड दिखाते हैं उनमें से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अब लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड और आयनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए, एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा वाला एटम इसको इलेक्ट्रॉन को लेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कोई एक देता है और दूसरा वाला वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अभी आयनिक बॉन्ड के तीसरा पॉइंट को चले। आयनिक बॉन्ड के तीसरे पॉइंट क्या कहते हैं? देखो एग्जाम्पल, जो मॉलिक्यूल आयन की बॉन्ड में बनता है, जैसे कि आपका लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब आप जो इसके नाम में बताता हूँ, ये कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड से भी बनाया जाता है। क्लियर? लिथियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, सो नहीं तो लिथियम फ्लोराइड। ओके, समझ में आ गया? ऐसे सब मॉलिक्यूल जो होता है एसेट्रा, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एसेट्रा आर जो आयोनिक मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर आयोनिक मॉलिक्यूल्स? जो मॉलिक्यूल आयोनिक बॉन्ड से बनाया जाता है
जो मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड में बनाया जाता है वो होता है आयनिक मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयोनिक मॉलिक्यूल्स, आर कॉल्ड आयनिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो चलो इसे कैसे बनाया जाता है उसके साथ डायग्रामेटिकल हम दिखते हैं। नोट कर दिया? मिटा दे? ओके। अभी आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी लेते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम और के नाम से पुकार सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? आयनिक बॉन्ड्स आल्सो कॉल्ड योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखो जब NaCl का एग्जाम्पल हम लेते हैं NaCl, तो NaCl में क्या होता है, सोडियम इसका आउटर सेल एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किया जाए तो इसका K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरे साइड में देखें तो क्लोरीन क्या होता है, उसका आउटर एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो 2 ये आपका क्लोरीन 2, 8 एंड 7। तो यहाँ पर सोडियम चाहता है कि भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल को मुझे ऑक्टेट बनने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना बहुत आसान होगा, क्योंकि 7 लाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कोशिश करेगा। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ट्रांसफर करता है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बनता है Na+। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो अभी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस के दूसरे तरफ देखो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट किया जाए, 2 2 4 2 6 और एक 7 है। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को इधर लॉस करता है वो क्लोरीन इसको पकड़ के लेता है, तो क्लोरीन इधर गेन करता है। एक तरफ तो सोडियम लॉस करता है, दूसरी तरफ क्लोरीन इसको गेन करता है। तो जो गेन करके वो अनायन बन जाता है। समझ में आ गया? तो सोडियम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके काटायन बनता है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है सोडियम, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है दूसरी तरफ कौन? क्लोरीन। तो 1 atom lost by 1 electron to form cation, in other side that electron is gained by another atom to form anion. So this is one cation form, another section is anion form. अभी cation और anion दोनों आपस में मिलते हैं। काटायन और आनायन दोनों आपस में मिलकर क्या बनते हैं, देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो आपको ये बन जाता है। Na इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका हालत तो क्या होता है, देखो Na+ एंड Cl- दोनों को मिला के रखने के लिए फोर्स की जरूरत है, बनता है NaCl। तो उस वक्त क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होना जरूरी है। जितना एनर्जी लॉस होता है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। यहाँ पर क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। सो काटायन और आनायन सोडियम Na+ एंड Cl-। देखो अभी Na+ का स्ट्रक्चर किया जाए तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो ऐसे कुछ बन जाता है, Na+ बन जाता है, जिसके आउटर सेल में 280। क्लियर? Na+ 28 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, Cl- 288 हो जाता है Cl-। तो अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के अंदर एक फोर्स होगा, प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? तो ये प्लस और माइनस, काटायन और आनायन के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मेशन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्शन हमेशा हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्शन होगा। तो जिस अट्रैक्शन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों अट्रैक्शन होके क्या होगा, मिल जाएगा, तो अभी एक बाइंड होके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, वो हो जाता है NaCl। समझ में आ गया? तो कहानी तो यहाँ से खत्म हो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Na और Cl मिलने से बन गया NaCl। समझ में आ गया? तो NaCl मॉलिक्यूल ऐसे बनता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक क्लियर? सो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। अभी इसके बारे में और क्या देखें, जब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए 3 स्टेप की जरूरत होता है, उसी तरह अच्छा इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी दिखा जाए। और एक एग्जांपल डालता हूं पहले, मैग्नीशियम क्लोराइड और एक एग्जांपल देखो। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट किया जाए 282, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 क्लोरीन होता है, उसका 17 287। समझ में आ गया? तो एक मैग्नीशियम एटम चाहेगा क्या, एक मैग्नीशियम एटम चाहता है क्या, उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आसान से लॉस कर दिया जाए, जहां से मैग्नीशियम Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम यहां से क्या करता है, देखो बेटा, इधर मैग्नीशियम एटम है तो उसका आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर एक क्लोरीन एटम होता है जिसका आउटर सेल में हमेशा बॉन्डिंग में आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है। बॉन्डिंग में हमेशा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, हम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं सिर्फ। तो ये मैग्नीशियम इधर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस क्लोरीन को, और ये मैग्नीशियम इधर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस क्लोरीन को। समझ में आ गया?
तो मैग्नीशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो लॉस करने के बाद मैग्नीशियम बन जाता है Mg2+। क्या बन जाता है? तो ये मैग्नीशियम आटम इधर से एक क्लोरीन को देगा, इधर से एक क्लोरीन को देगा, तो मैग्नीशियम पूरी तरह बन जाएगा Mg2+। दूसरे तरफ 2 क्लोरीन आटम है यार, एक क्लोरीन आटम दोनों इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके वो बन जाएंगे 2 अलग अलग Cl-, ये भी बन जाएगा Cl-, ये Cl-, ये बन जाएगा Mg2+। अभी प्लस माइनस आयन हो गया, अभी प्लस और माइनस दोनों के अंदर अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में गए? तो इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, तो MgCl2। अभी इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हमको मालूम है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी कभी ये सवाल भी जाता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन लॉस और गेन बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए आयनिक मॉलिक्यूल। जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है, जब एक आयनिक मॉलिक्यूल बनाया जाता है, उस वक्त एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है नहीं तो गेन कर सकता है, उसको इसका क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। नोट कर दीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन लॉस और गेन, लॉस करेगा नहीं तो गेन करेगा, लॉस और गेन बाय एन एटम इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक मॉलिक्यूल called its electrovalency, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और गेन करेगा आयनिक बॉन्ड बनाने के वक्त, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी मुझे बताओ NaCl में, इन NaCl एग्जाम्पल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na? सोडियम एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? 1, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंस 1। दूसरी तरफ क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 1। सो इन NaCl इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ सोडियम इज 1, क्लोरीन इज 1। इन मैग्नीशियम क्लोराइड, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? 2, तो 2। क्लोरीन कितना होता है? 1। एक क्लोरीन एटम, एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और गेन करता है? ओनली 1 एटम, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट लॉस और गेन, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। सो क्लियर? So this is a question also coming, right, the electrovalency. Next, then the steps of formation of ionic bond. Ionic bond बनाने के लिए कौन कौन सा फैक्टर फॉर्मेशन डिपेंड होता है? नोट कर सकते हो स्टेप्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए कितना स्टेप की जरूरत होता है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए 3 स्टेप की जरूरत होता है। स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन क्या होता है? इस स्टेप में पहले जो एलिमेंट्स, इसका आउटर सेल में करीबन 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 में एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं और ग्रुप 3 भी एलिमेंट बेसिकली होते हैं, जिसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 से 4 तो होगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड करे, 4 से कम 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वो एलिमेंट बेसिकली चाहते हैं क्या? उस इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान हो जाएगा उनको। तो एलिमेंट्स व्हिच आउटर सेल कंटेन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर बेसिकली इजी टू फॉर्म द कैटायन। सो बेसिकली ग्रुप 1, ग्रुप 2 ऐसे कुछ अल्काली मेटल और अल्कालाइन अर्थ मेटल, वो दे आर रेडी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन। सपोज एक एलिमेंट A, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बनता है A+। इधर बेटा आगे। जब एक एलिमेंट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। जब एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बनता है क्या? कैटायन। A लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, A+। सपोज सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बनता है Na+। देखो, एक एटम के आउटर सेल से कि इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी यहाँ पर हमको डालना पड़ता है। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? तो एक एटम के आउटर सेल से कि इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत होता है वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो यहाँ पर जितना एनर्जी देते हैं इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कैटायन बनाने के लिए हम उस एटम को चूज करना पड़ेगा जहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सके।
जहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे। तो वो एटम कौन है पीरियोडिक टेबल का? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, alkali metal, alkaline earth metal. Basically these elements they are interested to lose electron because their outer shell contain only 1-2 electron. अब सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जो एलिमेंट आसानी से इसका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो एलिमेंट बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं, इसका लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होते हैं। तो यू हैव टू चूज द कैटायन फॉर्मेशन करने के लिए लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, लोअर आयनाइजेशन एनर्जी elements can easily form cation। तो पहले स्टेप में cation बन गया। कोई भी एटम जिसको आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं तो हमको एनर्जी देना पड़ता है, तो जिस एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का उसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी जरूरत है वो होता है कौन सा एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है? आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड योर आयनाइजेशन एनर्जी, जिसने हमने पढ़ाया था ऑलरेडी। क्लियर? अभी दूसरी तरफ चलते स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ आनायन। हेलो, फॉर्मेशन ऑफ आनायन। जो एलिमेंट के आउटर सेल से 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा क्या चाहते हैं कि हमें कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो उसी तरह एलिमेंट को आप आनायन बनाने के लिए कोशिश करोगे, इजी होगा, बेहतरीन होगा। और आनायन क्या होता है? जब सपोज बी एटम जो इलेक्ट्रॉन ए देता है, जब इलेक्ट्रॉन ए लॉस करता है तो ए प्लस बनता है, दूसरी तरफ बी वो इलेक्ट्रॉन को लेकर बी माइनस बनता है। क्या बनता है? बी माइनस बनता है। तो ए इलेक्ट्रॉन ले देकर ए प्लस बनता है, वही इलेक्ट्रॉन को बी गेन करके बी माइनस बनता है। एग्जाम्पल क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस। समझ में आ गया? जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हेलो, जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयन इज कॉल्ड इट्स द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितना एनर्जी रिलीज होगा, पहले से ऑलरेडी हमने बोल चुके हैं, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना बेहतरीन कंपाउंड बन सकता है। जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना बेहतरीन कंपाउंड बन सकता है। मोर इज द एनर्जी रिलीज, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वो एटम को चूज करो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जिसका पास एनर्जी क्या होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने वाले हैं, तो आसानी से आयनिक कंपाउंड, बहुत स्टेबल आयनिक कंपाउंड बन सकता है। क्लियर? तो पहले स्टेप में काटायन बनता है, दूसरे स्टेप में आनायन बनता है। पहले स्टेप में कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके काटायन बनता है, दूसरे स्टेप में कोई एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके आनायन बनता है। तो काटायन फॉर्मेशन देन आनायन फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गया? तो सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देकर काटायन बनता है, दूसरी तरफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर आनायन बनता है। फॉर्मेशन ऑफ काटायन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ आनायन हो गया। अभी दोनों को क्या कर रहे, मिला है। स्टेप 3, इन स्टेप 3 में क्या होता है? तो पहले स्टेप में काटायन हो गया, दूसरे स्टेप में आनायन हो गया। अभी स्टेप 3 होगा। स्टेप 3 में क्या होता है? अभी काटायन और आनायन दोनों आपस में मिलेंगे। कौन सा फोर्स के साथ मिलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। तो दोनों आयन जब आपस में मिलते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है। स्टेप 3 नोट कर सकते हो। योर स्टेप 3 इज द फॉर्मेशन ऑफ अ लैटिस एनर्जी। योर स्टेप 3 इज योर फॉर्मेशन ऑफ अ लैटिस एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस एनर्जी और रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी फॉर्म होगा और रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी, फॉर रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के फैक्टर आएगा लैटिस एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय रिलीज ऑफ, वैसे कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड by releasing energy is called lattice energy। very important point, lattice energy। और lattice एंथैल्पी कहते हैं जिसका सिंबल U जैसे होते हैं। तो हमने पहले स्टेप में सोडियम लॉस इलेक्ट्रॉन कर दिया तो Na+ मिल गया। दूसरी स्टेप में क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन गया। अभी दोनों Na+ और Cl- आपस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? समझ में आ गया? Na+ और Cl- जब दोनों मिलेंगे तो Na+Cl- दोनों मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड जब बनेगा, NaCl जब मॉलिक्यूल बनेगा
सोडियम एंड क्लोरीन मिलकर जब सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल बनता है, सोडियम एंड क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड जब बनेगा, NaCl बनेगा, उस वक्त एनर्जी रिलीज होगा। तो क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें से एनर्जी रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? तो जितना एनर्जी रिलीज होगा जब एक आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। याद रख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is formed, the amount of energy released for the formation of 1 mole of ionic compound, for the formation of 1 mole of ionic compound is called lattice energy। जब सोडियम Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन जब आपस में मिलेंगे, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन जब आपस में मिलेंगे तो NaCl बनेगा। जब NaCl बनेगा तो एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल बनाने से क्या होता है, जब दो एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एनर्जी लॉस होगा। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाने के दौरान जितना एनर्जी लॉस होगा उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, जहाँ से हम पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्ट्रॉन्ग है। तो लैटिस एनर्जी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन सा आयनिक बॉन्ड, कौन सा आयनिक कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो लैटिस एनर्जी हमको बताएगा। लैटिस एनर्जी जैसे यूनिट का एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इसी तरह लैटिस एनर्जी का यूनिट भी वही किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। तो मोर इज द लैटिस एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। मोर इज द लैटिस एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। तो लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर उतना ही आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे 3 इजी स्टेप होता है। सो लिखो, टू easier formation of an ionic compound, टू easier formation of ionic compound, एक आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या क्या इजी स्टेप होता है, क्या क्या easier फॉर्मेशन स्टेप है, तो क्या क्या फैक्टर होता है। फैक्टर्स अफेक्ट, हम ऐसे कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। नंबर 1, लो आयनाइजेशन एनर्जी। जितना लो आयनाइजेशन एनर्जी, जो जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी जो एलिमेंट को होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर 2, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जितना एनर्जी लॉस होगा उतना बेहतरीन आयनिक कंपाउंड बनने की चांस है। और तीसरा है हाई लैटिस एनर्जी। हाई लैटिस एनर्जी, जिस मॉलिक्यूल जितना लैटिस एनर्जी स्ट्रॉन्ग बहुत रिलीज होगा, जितना एनर्जी रिलीज होगा लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनने की चांस है। तो बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्टर की जरूरत होता है। पहला फैक्टर होता है लो आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा फैक्टर क्या होता है हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इसको नोट कर लिया जाए। लो आयनाइजेशन एनर्जी, जिस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो कैटायन बना सकता है। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज़्यादा होगा, तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन में एलिमेंट में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रो अफिनिटी, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा अनायन बना सकते हैं। और हाई लैटिस एनर्जी, जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बन सकता है। तो आसानी से आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए ये तीनों पॉइंट को याद रखना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट चलो, टू इजियर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी लैटिस एनर्जी के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी लगे। लैटिस एनर्जी किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी, अब एंट्रेंस में बार बार ये सवाल भी गिरा जाता है, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्लियर? मोर इज द लैटिस एनर्जी, स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। अभी लैटिस एनर्जी सिंबल यू, लैटिस एनर्जी Le, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आयन and lattice energy is inversely proportional to size of ion। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिया जाए। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आयन and lattice energy is directly proportional, inversely proportional to size of ion।
साइज ऑफ आयन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो Al3+ का लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, उससे बाद Mg2+, उसके नीचे Na+, लैटिस एनर्जी दिखा जाए। साइज की बात करें ना, एंड सपोज फ्लोराइड ये छोटा साइज है, उसके बाद क्लोराइड होगा, समझो छोटा साइज ऑफ आयन, जिसका जितना छोटा साइज होगा उसका लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो लो इसको कंपेयर करने के लिए दो एग्जाम्पल बेहतरीन होता है। अभी ये देखो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। अभी सिलिकॉन क्लोराइड, अभी चारों आयनिक कंपाउंड आपको मिला है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन क्लोराइड। ये चारों आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको जानने के लिए हम लैटिस एनर्जी को देखना पड़ेगा। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आयन। इसको ब्रेक किया करें तो ब्रेक करने से क्या बनता है, देखो इसको ब्रेक करने से क्या बनता है, NaCl को ब्रेक किया जाए तो ये बनेगा Na+Cl-, MgCl को ब्रेक करे तो ये बनेगा Mg2+ 2Cl-, LCl3 को ब्रेक करे L3+ 3Cl-, SiCl4 को ब्रेक करे Si4+ 4Cl-। तो यहाँ से क्लोराइड आयन का चार्ज एक ही है मैग्नीट्यूड। अभी इस काटायन को चार्ज देखो, तो काटायन में Na+, Mg2+, Al3+, Si4+। सो Si4+ क्या लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, Al3+, उसके बाद Mg2+, उसके बाद Na+। समझ में आ गया सवाल। तो अभी आंसर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है कौन है, तो SiCl4। क्यों, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आयन। आयन का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनेगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं। तो SiCl4 इज स्ट्रॉन्गर आयनिक कंपाउंड कंपेयर टू LCl3, देन कंपेयर टू MgCl2, देन कंपेयर टू NaCl। समझ में आ गया, हाँ ना, नहीं, हाँ। तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ आयन, किसके ऊपर। अब इसको मिटा दे और दूसरे वाला एग्जांपल एप्लीकेशन देते हैं, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ आयन। अभी साइज ऑफ आयन को लेकर एक एग्जांपल डालते हैं। अभी देखो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, ओके। देखो बेटा, नहीं तो तीनों ये तीनों लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये तीनों आयनिक बॉन्ड से बना है। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोई आटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा वाला आटम वो इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई देता है दूसरा वाला लेता है। सो लॉस एंड गेन प्रोसेस में चलता है, एक वाला देता है और दूसरा वाला लेता है। लॉस ऑफ काटायन, लॉस करके काटायन बनता है, गेन करके आनायन बनता है। तो उसके अंदर कौन स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग कौन है, तो अब इसको मिटा दे, Li+Cl-, Na+Cl-, K+Cl-। अभी तो मैग्नीट्यूड बराबर है सबका चार्ज 111, इसका भी 111, क्लियर। तो अभी इस तीनों के अंदर क्या करना है, Li+, Na+, K+। अभी एक कांस्टेंट है, अभी तीनों को देखो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका साइज छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, और वो उसका स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बन सकता है। तो स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड कौन है, लिथियम का साइज छोटा है, पीरियोडिक टेबल नीचे जाने से साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर छोटा साइज कौन है, लिथियम का साइज छोटा है, उसका पर सोडियम, उसका पोटेशियम। तो लिथियम क्लोराइड इज स्ट्रॉन्गर आयनिक कंपाउंड देन सोडियम क्लोराइड देन योर पोटेशियम क्लोराइड। समझ में आ गया, हो गया। तो जिसका साइज छोटा होगा वो स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अभी आयनिक बॉन्ड बन गया। अभी आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जो बना है तो उसका कोई प्रॉपर्टी देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली बहुत चार सेपरेशन होता है। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना, नहीं पानी में मिलाओ मिल जाएगा, एंड प्रोड्यूस आयंस, सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस
आयंस बना सकते हैं. क्लियर. सपोज NaCl को पानी में, NaCl is the bad conductor of electricity in solid state, but they conduct electricity in the molten state and aqueous form. Clear. Ionic compounds are basically very hard and rigid. These are very hard, बहुत हार्ड है. क्यों? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दीज आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 12th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाएगा. रेगुलर सिमेट्री. दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. क्लियर. एंड दीज आर ब्रिटल ऑल्सो बी ब्रिटल. सो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्यों है? व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड? व्हाई आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रिटल? बिकॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम. क्लियर. आयनिक कंपाउंड्स और एक प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है. क्लियर. Ionic bonds are non-directional. These are non-directional. Electron is not moving anywhere. Non-directional. By transformation, they are just forming. By transformation, they are cation and another is anion. So non-directional. The ionic compounds are non-directional. Non-directional. Clear? So these are some important properties of ionic compounds. So this is all about the ionic bond and ionic compound. Clear, students? Next video we will see the covalent bond and covalent compound.